My precious friend, this is a month of victory. प्रिय मित्रों, यह महीना तो जय का महीना है। According to 1 Corinthians 15:57, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन। God gives us the victory in our lives through Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है हमारे जीवन में। He is the Lord who has overcome death, वह तो परमेश्वर है जिसने मृत्यु को जय पाई है, overcome sin, which is the cause of death. वह पाप पर जय पाई है जो मृत्यु का विषय है। And he rose up on the third day, alive, destroying the power of death. और तीसरे दिन वह जी उठा मृत्यु को हराकर। That's why he is the Lord of everyone. और इसीलिए तो वह हर एक का परमेश्वर है। And he is the Lord over everything. और परमेश्वर है हर एक बातों के ऊपर। Even today, we have this great God with us. और आज भी यह महान परमेश्वर हमारे साथ है। Jesus Christ says, I will never leave you. I will never forsake you. यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा। So I will be with you to give you victory in everything in your life. और तुम्हारे जीवन में हर एक बातों पर तुम्हें जय देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। So turn your eyes on Jesus for your victory today. अपने जय के लिए अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाएं। What are the victories that God gives us through Jesus Christ? यीशु के द्वारा वो कौन सी बातें हैं जिनमें परमेश्वर हमें जय देते हैं? Firstly, the victory against our enemies. पहली बात, दुश्मनों के खिलाफ हमें जय देते हैं। In Deuteronomy 20 and verse 4, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 4 वचन। the Bible says, For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। Yes, we have enemies from our own household. हाँ, हमारे खुद के घराने से हमारे साथ दुश्मन है। Micah 7:6. मीका 7:6। We have enemies who are jealous against us. वह तो शत्रु हैं हमारे खिलाफ जो हमसे जलन रखते हैं। We have enemies who hate the Lord Jesus, whom we carry in our life. और जिस यीशु को हम अपने हृदय में लेकर चलते हैं, दुश्मन है जो उस परमेश्वर से बैर रखते हैं। There are different types of enemies. और कई विभिन्न प्रकार के दुश्मन हैं। But how to overcome all the power of these enemies? लेकिन कैसे दुश्मनों की इन सभी सामर्थ पर हमें जय पाना है? The first way to overcome and have victory from the power of the enemies is forgiveness. पहली बात जिससे दुश्मनों की ऐसी सभी सामर्थ पर हमें जय पाना है, वह तो है माफ करना। I want to talk to you about forgiveness. मैं क्षमा के विषय में कुछ बातों को करने पाऊंगा। Forgiveness. क्षमा, That is the way for victory over our enemies. और यही तो रास्ता है दुश्मनों पर जय पाने के लिए। Proverbs 16:7 says, नीति वचन 16:7 कहता है, When a man's ways please God, he makes his enemies to be at peace with him. जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। What pleases God in our life? हमारे जीवन में परमेश्वर को कौन सी बातें आनंद देती है या उसको भाता है? Forgiving our enemies. दुश्मनों को क्षमा करना। Look at the Lord Jesus Christ. यीशु की ओर देखें। When he was on the cross, जब वह क्रूस पर था, his enemies who crucified him were around वह him. दुश्मन जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द थे। Yes, the chief priests who levied false accusation because of jealousy against him were all the time standing and criticizing him. और वह महायाजक जिसने झूठे इल्जाम को लगाया था, उसके विषय में जलन रखते हुए, And they were saying, if you are God, if you're God's son, come down and save yourself. और कहते थे कि यदि तू परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतर कर बचा ले। If you are the Christ, why don't you save yourself? यदि तू मसीह है तो तू क्यों अपने आप को नहीं बचाता? On the other side, और दूसरी ओर, a thief
who was condemned because of his sin, was criticizing Jesus. और दूसरी ओर वो चोर जिसको अपने कार्य के द्वारा सजा मिल रही थी, वह भी उसकी आलोचना करता है। On the other side, people who are just passing by, और एक और जहां लोग सिर्फ गुजर रहे हैं, who never even knew who Jesus was, जिन्होंने कभी यीशु को जाना ही नहीं, what good he did for the people, और वो भली बातें जो उसने लोगों के लिए की, but they were criticizing him and making fun of him. और वह तो उसकी आलोचना करते थे और उसका मजाक बना रहे थे। He saved the whole world, but he is not able to save himself, they said. वह तो दुनिया को बचाता फिरा, लेकिन वह अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। And the Roman soldiers, और रोमी सेना, they had pierced him उन्होंने उसे भेदा, for no sin of his, उसके अपने किसी पाप के लिए नहीं, nailed him to the cross for no sin of Jesus. उससे क्रूस पर खीले ठोके गए जबकि उसमें कोई पाप नहीं था। They whipped him for no sin of Jesus. यीशु में कोई पाप नहीं था, फिर भी उसे कोड़े मारे गए। But in the midst of all of them, लेकिन इन सभी बातों के मध्य में Jesus was praying. यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। In Luke 23:34, लूका 23 अध्याय 34 वचन, Father, forgive them, पिता उन्हें क्षमा कर, for they know not what they do. वो नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। He kept on saying, Father, forgive them, as they were criticizing and accusing him and making fun of him. और वह तो लगातार कहता रहा, पिता उन्हें क्षमा कर, जबकि वे लगातार उसकी आलोचना करते थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। Yes, that's why the Roman centurion, looking at him, said, truly this is God. तभी तो रोमी सूबेदार ने कहा कि सचमुच में यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। He is a righteous man. वह तो धर्मी है, He is the Son of God. वह परमेश्वर का पुत्र है। What a witness, my friend. क्या गवाही है प्रिय मित्रों, His enemy honored him. कि एक दुश्मन ने उसका आदर किया। His enemy who crucified him made peace with him. वह दुश्मन जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसने उसको आदर दिया। You can have the same power to destroy the works of the enemies who unjustly accuse you. और आपके पास यही सामर्थ्य आएगी कि आप दुश्मन की ऐसे कामों को नाश करें जो अन्याय से आपके लिए योजना बनाते हैं। Forgiveness. क्षमा। Job 42:10. अय्यूब 42:10। Job prayed for his friends for their salvation, the ones who accused him unjustly. अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, उनके उद्धार के लिए जिन्होंने उस पर आलोचना किया। What about Stephen? स्तिफनुस के विषय में क्या? When people were stoning him जब लोग तो पथरवाह कर रहे थे, just because he preached Jesus. इसलिए क्योंकि उसने यीशु का प्रचार किया। Acts 7:59-60 says, प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59-60। as he was dying, Stephen prayed. जैसे स्तिफनुस मर रहा था, उसने प्रार्थना की। He did not pray for revenge. उसने तो बदले के लिए प्रार्थना नहीं की। Lord Jesus, receive my spirit. यीशु प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। Then he fell on his knees and cried out, और अपने घुटनों पर गिरकर परमेश्वर को पुकारा, Lord, do not hold this sin against these people who are stoning me and killing me because of you. परमेश्वर इन लोगों पर कोई पाप ना डालना जो मुझको पथरवाह कर रहे हैं। And saying that, he fell down and died. और यह कहते हुए वह नीचे गिरा और मर गया। That's why his face was shining as an angel. और इसलिए उसका चेहरा तो स्वर्गदूतों की नाई चमकदार था। Before all his enemies, his face was shining in the Sanhedrin. और सनहेड्रिन के सामने, अपने दुश्मनों के सामने उसका चेहरा चमकदार था। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, God will make your face to shine before your enemies. परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपके चेहरे को चमकदार बनाएगा। When you forgive them in the name of Jesus and pray for their salvation. जब आप उन्हें यीशु के नाम से क्षमा करेंगे और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। A young boy एक जवान लड़का lost his father. अपने पिता को जिसने खो दिया, A chieftain killed him
because his father was preaching Jesus to the people and helping them to learn. एक व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या कर दी क्योंकि वह तो यीशु का प्रचार कर रहा था और लोगों की सहायता कर रहा था। All the people in the village began to love that teacher. और उस शिक्षक से हर एक गांव के लोग प्रेम करने लगे। And so the chieftain became jealous of him और इसलिए वो चीफ्टन उससे जलन रखने लगा and killed him. और उसे मार दिया। Next day, the son of that missionary was riding fast on his horse to the headman of the village. अगले दिन इस सेवक का बेटा अपने घोड़े को चलाते हुए उस गांव के प्रमुख के घर जा रहा था। Everybody thought the boy is going to kill the headman. सब लोगों ने सोचा कि वह तो उस प्रमुख को मार डालेगा। But when he got down, लेकिन जब वो नीचे उतरा, he had a big bundle in his hands. और उसके पास एक बड़ा बंडल था। He took it and put it at the feet of the headman. उसने उस प्रमुख के चरणों पर उसे रख दिया। And he said, और उसने कहा, Sir, आदरणीय, you look just like my father. आप मेरे पिता के समान नजर आते हैं। You are the same size as my father. आप मेरे पिता के समान कदकाठी में हैं। So I have brought my father's dresses. इसलिए मैंने अपने पिता के सभी वस्त्रों को लेकर आया हूँ। I don't have my daddy anymore. मेरे पास मेरे पिता नहीं है From now on, you are going to be my daddy. और अब से आप ही मेरे पिता बनकर रहेंगे। The chieftain was shaken. वह प्रमुख तो हिल गया। He cried out, वह रोया, I killed your father with my spear, मैंने अपने भाले से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, but you have killed me with your love, my son. लेकिन तुमने अपने प्रेम से मुझे मार दिया। You will be my son. तुम मेरे बेटे रहोगे। But then I will follow the Lord whom you carry, through whose power you have forgiven me. लेकिन अब मैं उस परमेश्वर के पीछे चलूंगा जिसे तुम अपने हृदय में लेकर चलते हो और जिसकी सामर्थ से तुमने यह किया है। Yes, he was transformed. हाँ, वह तो परिवर्तित हो गया। Forgiveness क्षमा breaks the power of our enemies. दुश्मनों की सामर्थ को तोड़ता है। May God give you that grace परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे to overcome the power of your enemies through forgiveness. ताकि क्षमा के द्वारा दुश्मनों की सामर्थ पर जय पाए। Ask God for this grace today, परमेश्वर से इस अनुग्रह को मांगे and the Lord will perfect it. और परमेश्वर से सिद्ध करेंगे। God is love. परमेश्वर प्रेम है। May that spirit of God's love overflow in our hearts for everyone, even our enemies. परमेश्वर का वह सिद्ध प्रेम हमारे हृदय से बह निकले लोगों के लिए, हर एक के लिए, यहां तक कि हमारे दुश्मनों के लिए भी। And secondly, और दूसरी बात, the blessings that comes upon us destroys the curses that our enemies bring upon us. वह आशीष जो हमारे ऊपर आती है वह तो उन श्रापों को तोड़ती है जो दुश्मन हमारे ऊपर लेकर आते हैं। Deuteronomy 23:5 says, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 5 वचन कहता है, because the Lord loves you, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, He will turn every curse into a blessing in your life. आपके जीवन में हर एक श्राप को आशीष में बदल देंगे। Every curse that your enemies bring against you shall be turned into a blessing because God loves you, loves you, loves you. दुश्मन जो आपके जीवन में श्राप को लेकर आते हैं परमेश्वर उसे आशीष में बदल देंगे क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। Do not be afraid. इसलिए घबराएं नहीं। You have God's love on your side. आपकी तरफ में परमेश्वर का प्रेम है। That will change all the curses that is sent against you into a blessing by His love. उसके प्रेम के द्वारा उन सारे श्रापों को जो आपके लिए भेजे गए हैं उसे आशीष में बदल देगा। What does the Lord do? परमेश्वर क्या करते हैं? In Psalm 23 and verse 5. भजन संहिता 23:5 वचन में, Before your enemies, the Lord prepares a table of blessing for you. वह तो आपके लिए दुश्मनों के सामने मेज को बिछाता है He anoints your head with oil. और तेल से आपके सर पर अभिषेक किया है। Oil symbolizes the Holy Spirit. तेल तो पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है।
They have the enemy spirit within them, but God gives you the Holy Spirit, the Spirit of God. उनके भीतर तो दुश्मनों की आत्मा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है जो परमेश्वर की आत्मा है। And your cup, your life will overflow with blessing. और आपका कटोरा तो आशीषों से भरकर बह निकलेगा। That's why Jesus says, इसलिए यीशु कहते हैं Matthew 5:11 and 12. मत्ती 5:11 और 12, When people persecute you, जब लोग तुम्हें सताएं, falsely say all kinds of evil against you, तुम्हारे विषय में हर एक व्यर्थ और झूठी बातों को कहें, insult you बेइज्जत करें because of Jesus, यीशु के वजह से, what should you do? आपको क्या करना है? Verse 12 says, rejoice and be glad. वचन 12 कहता है कि आनंद करो। Jesus says, at that moment you should rejoice and be glad. यीशु कहते हैं कि उस क्षण में आनंद करो, Because God's reward is coming upon you then. क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। God's provision of blessing is coming upon you. परमेश्वर की आशीष की वो प्रावधान आने वाला है। Yes, in 1985, हाँ, 1985 में when my father was criticized because his kidneys failed, जब मेरे पिता की आलोचना की गई, जब उनके किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, because he had said God wants me to build a university before that. क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं एक विश्वविद्यालय का निर्माण But करूं, following that, his kidneys failed. और उसका अनुसरण करते हुए उनकी किडनियों ने काम करना बंद A किया। few people said, if God had spoken to you, why should he allow your kidneys to be destroyed? कुछ लोगों ने कहा कि यदि परमेश्वर ने तुमसे बात करी है तो क्यों इस बात को तुम्हारे जीवन में होने दिया कि तुम्हारी किडनियां खराब You are हुई? not God's man, they said. तुम परमेश्वर के दास नहीं हो, लोगों ने कहा। Your prophecy about building a university is not right, they said. और उन्होंने कहा कि यह भविष्यवाणी विश्वविद्यालय के निर्माण करने के लिए भी सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। You are a false prophet. तुम झूठे नबी हो। Yes, the heart of my father and all of us were broken हाँ, मेरे पिता का और हम सबका हृदय तो टूट गया when we go through suffering. जब हम इस कष्ट से होकर गुजरे, And because of that, false accusation comes. और उसकी वजह से झूठी आलोचनाएं आई। We are not able to comfort ourselves. हम अपने आप को आराम नहीं दे पा रहे थे। But Jesus came to us on my father's birthday. लेकिन यीशु मेरे पिता के जन्मदिन पर आए, And Jesus said, और यीशु ने कहा, my children, मेरे बेटे, you always do my will. तुम हमेशा मेरी इच्छा को पूरी करते हो, Not only when times are good, और सिर्फ उस वक्त में नहीं जब चीजें अच्छी है, but even during the most troubled times, you always do my will. और उस वक्त में भी जब परिस्थिति विपरीत है। You must know. तुम इस बात को जानो, Because of that, I love you. इस वजह से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। And so, whatever the wicked people may be saying against you, the more they speak against you, the more I will turn that into a blessing for you. और इस वजह से जो दुष्ट लोग तुम्हारे खिलाफ में कहते हैं, जितना अधिक वो तुम्हारे खिलाफ में कहेंगे, उतना अधिक मैं तुम्हें उठाता चला जाऊंगा। Yes, the blessings that I give you will destroy all the curses of the wicked people. और जो आशीष मैं तुम्हें दूंगा वह तो उन श्रापों को, दुष्ट लोगों के श्रापों को नाश कर देगा। And you will rise up. और तुम ऊंचे उठाए जाओगे। Your table will be full of blessing. और तुम्हारी मेज तो आशीषों से भरी रहेगी। Your head will be anointed. तुम्हारा सर अभिषेक किया जाएगा। And the power of the Holy Spirit will go out of you. और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे द्वारा बहने पाएगी। And millions will honor you. और लाखों लोग तुम्हारा आदर करेंगे। That's what exactly happened. और यही तो हुआ। It will happen to you also. यह आपके साथ भी होगा। When enemies come against you, because of the name of the Lord that is against you, all that you have to do is rejoice, 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 because God loves you.
और परमेश्वर से प्रेम करने की वजह से जब दुश्मन आपके खिलाफ में आए तो आपको क्या करना है? आपको आनंद करना है, आनंद करना है और आनंद करना है। Rejoice because God loves you. आनंद करें क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। And the Lord will do justice. और परमेश्वर न्याय करेंगे। He will bless you more and more. वह अधिकाई से आपको आशीषित करेंगे। All that the Lord has spoken through you and about you will be fulfilled by Him. वह सारी बातें जो परमेश्वर ने आपके द्वारा और आपसे कही है वह सब कुछ तो पूरी होगी। Let not your heart be troubled. इसलिए तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। Thirdly, तीसरी बात, how to get victory. कैसे जय पाएं? Victory over our people whom we have to overcome to fulfill God's will. जय उन लोगों पर जिसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना को पूरी करने पाए। Obedience to God. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। Firstly, obedience to our parents brings the blessings from God. अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना आशीषों को लेकर आता है। The Bible says in Ephesians 6:1, इफिसियों 6:1 में बाइबल कहती है, Children, obey your godly parents. बच्चों प्रभु में अपने माता पिता के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। Then the giants who are against the Lord will fall. और तब वह दानव जो परमेश्वर के खिलाफ में हैं वह गिरते जाएंगे। And you will get the victory. और तुम्हें जय मिलेगा। You will become a king. तुम राजा बनोगे। You will rise up. तुम ऊंचे उठाए जाओगे। And Daniel also did the same thing. और दानियल ने भी तो यही किया। He obeyed God and prayed 3 times every day. उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और 3 बार दिन में प्रार्थना किया करता। And because of that, as the enemies of the Lord threw him into the lion's den, और इस वजह से परमेश्वर के दुश्मनों ने उसे शेर की मान में डलवा दिया। God sent an angel, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, shut the mouth of the lions, शेरों के मुंह को बंद कर दिया and brought him out alive. और उसे जीवित वापस लेकर आया। And the king raised him to greater heights. और राजा ने उसे ऊंचे स्थान पर बैठाया। Daniel said, दानियल ने कहा, O king, राजा, I was found innocent in the sight of God. मैं तो परमेश्वर की नजर में निर्दोष पाया गया। I have not done anything wrong before you also, O king. और मैंने तेरी नजर में भी कोई गलत काम नहीं किया है राजा। I have been obedient to God. मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा हूँ। I have been obedient to the laws of the land and to you, O king. और राजा, मैं तो इस राज्य के नियम में भी आज्ञाकारी रहा हूँ। God saved me from the mouth of the lion. और इसलिए परमेश्वर ने मुझे शेरों से बचाया। And all the enemies of Daniel were thrown into the lion's den. दुश्मन जो दानियल के थे उन्हें शेरों की मांद में डाल दिया गया। And all of them were killed by the lions. और वे सारे लोग शेरों के द्वारा मार दिए गए। He had no enemies after that. और उसके बाद कोई दुश्मन नहीं। All the enemies who are against the Lord and His will shall be removed through your obedience to God and the word of वह God. दुश्मन जो परमेश्वर और उसकी इच्छा के विरोध में है, आपके आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के और वचन के द्वारा हटा दिए जाएंगे। Amen. आमीन। Obey the word of God. परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी रहें God will give you great victory. और परमेश्वर आपको महान जय देंगे। May God give you victory over all your enemies. परमेश्वर आपके सभी दुश्मनों के ऊपर आपको जय दे Bless you in everything. और हर एक बातों में आपको आशीषित करे। Father, give us these graces, Lord, परमेश्वर हमको यह अनुग्रह दे and transform us into your image. और हमें अपने चरित्र में बनाते चले जा। Help us to forgive our enemies हमें सहायता करे कि हम अपने दुश्मनों को माफ करें and help us to always rejoice over your love for us in the midst of our enemies. और अपने दुश्मनों के मध्य में हमारी सहायता करे कि हमेशा हम जय आनंद मनाने पाए। Help us to be obedient to your word आपके वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी बनाए and give us great victory over our enemies. और हमारे दुश्मनों के ऊपर हमें महान जय को दीजिए। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen.
आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे। May this month be a month of great victory for you. और यह महीना तो आपके लिए महान जय का महीना होने पाए।